السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں حکومت دورانی اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز کریں گے دعا کے ساتھ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے رب ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ آغاز میں آپ کو خبر دیں گے، شہر قائد میں حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ سائٹ ایریا میں کمپنی کے کیمیکل ٹینک کے کام کے دوران دم گھٹنے سے 6 مزدور جان کی بازی ہار گئے۔ واقعہ سائٹ منورت چرنگی کے قریب واقع فیکٹری میں پیش آیا۔ فیکٹری کا ایک ملازم زیر زمین ٹینک میں صفائی کے لیے اترا تھا۔ مبینہ طور پر زہریلی گیس سے اس کی حالت خراب ہوئی تو مدد کے لیے دوسرا مزدور نیچے اترا۔ اسی طرح متاثرہ افراد کو بچانے کے لیے جانے والے دیگر افراد کی حالت غیر ہوتی گئی تو انتظامیہ نے پولیس اور امدادی اداروں کو اطلاع دی۔ ریسکیو حکام نے 6 افراد کو انتہائی تشویشناک حالت میں ٹینک سے نکال لیا تھا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد اعجاز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، کراچی کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے اندر جو ہے ایک فیکٹری تھی کیمیکل کی، جس میں ایک جو ہے آگ لگی، جس کے بعد جو ہے فائر بریگیڈ کے عملے نے تاخیر کے مطابق جو ہے 1.5 گھنٹے بعد گاڑیاں پہنچ کر جو ہے اس کو آگ کو جو ابھی بھی کام جو ہے لگی ہوئی ہے اور آگ کے اندر کولنگ کا عملہ جاری ہے۔ اس کے برابر میں دوسری فیکٹری جس کے بعد جو آگ نے جو اس کو بھی لپیٹ میں لیا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے دوسری جگہ پر فیکٹری تھی سائٹ ایریا کے اندر جو ہے وہاں پر جو ہے ٹینک کے اندر جو ہے 6 مزدور جو ہے جس کے جو ہے جانباز کو ان کو کبھی بات کے لیے جو ہے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، لیکن ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد جو ہے زخموں کے ساتھ لاتے ہوئے جو ہے وہ 6 افراد جو ہے اس وقت جانباز ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے فیکٹری کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی کیمیکل کی فیکٹری میں ابھی بھی آگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے ابھی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ رینجر پولیس اہلکار بھی یہاں پر نفسی بہت زیادہ موجود ہے اور جو ٹریفک کی روڈ کو بند کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد اعجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی کی ایک اور فیکٹری جل کر خاکسار ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر شدید زخمی ہو گیا۔ کراچی کی ایک اور فیکٹری جل کر خاکستر ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر شدید زخمی ہو گیا۔ کراچی کے علاقے غنی چورنگی کی قریب فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رنگ بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ نے قریب ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں طلب کی گئیں جنہوں نے مسلسل کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا۔ اس حوالے سے ترجمان رینجرز نے میڈیا کو بتایا کہ رینجرز کے جوان ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مصروف عمل رہے۔ آگ کو بروقت بجھا کر بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے جس کے بعد نقصانات کا اصل تخمینہ لگایا جا سکے گا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا غنی چورنگی کے قریب کیمیکل فیکٹری میں لگنے والی آگ پر تاحال مکمل طور پر قابو نہ پایا جا سکا۔ مزید بتا رہے ہیں شاہد اعجاز۔ جی شاہد اعجاز، بتائیے گا۔ جبلو کراچی کے اندر جو ہے آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو ایک کیمیکل کی فیکٹری تھی جس کے اندر جو ہے آتش زدگی کا معاملہ سامنے پیش آیا اور جیسے کہ میرا کیمرہ مین اصغر آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ابھی بھی جو ہے آگ صحیح طریقے سے بجھی نہیں ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے ابھی بھی بر وقت کام کر رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر جو ہے ابھی بھی کولنگ کا عملہ تو جاری ہے، دوسری جانب فائر بریگیڈ کی جو ہے کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو یہ فیکٹری ہے ایسٹ لینڈ انڈسٹریز کمپنی کے نام سے جو ہے یہاں پر یہ فیکٹری بتائی جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے فائر بریگیڈ کی جو ہے تقریباً 5 سے 6 گاڑیاں یہاں پر جو ہے ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ جیسے کہ میرا کیمرہ مین آپ کو اصغر دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے واٹر ٹینکر ایم ڈی واٹر بورڈ کی جانب سے جو ہے یہاں پر ایک ہائی الرٹ کیا گیا تھا، پانی کی فراہمی جو ہے یہاں پر نہیں روکی گئی تھی اور یہاں پر جو ہے ابھی بھی پانی کی فراہمی جاری ہے اور یہاں پر فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے ابھی بھی کام کر رہا ہے، بالخصوص یہاں پر واٹر بورڈ ایم ڈی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر رینجرز کے اہلکاروں نے اور پولیس کی نفری نے اور امدادی ٹیموں کے رضاکاروں نے جو ہے یہاں پر کام بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس فیکٹری کے اندر جو ہے پوری کمپنی جو ہے جل کر جو ہے خالصتر بالکل ختم ہو چکی ہے اس وقت جو ہے اور یہاں پر جو ہے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ابھی بھی کولنگ کا عملہ جاری ہے اور یہاں پر جو ہے ابھی بھی جو ہے بہت شکریہ شاہد اعجاز۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا اگر نون لیگ نے ملک دشمنی کی سیاست جاری رکھی تو اس پر پابندی لگ سکتی ہے۔ پاکستان میں نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف بانی MQM2 بن گئے، لندن سے ان کا سیاسی جنازہ ہی آئے گا، نون ٹوٹ کر رہے گی، کوئی وجہ نہیں نون سے شین نہ نکلے۔
नवाज शरीफ साहब, आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत फौज के बदौलत है। एक एक दिन में 14-14 जवान शहीद हो रहे हैं और आपकी कुल डिमांड इतनी है, एक नकाती एजेंडा था, 1 साल तक आपकी जबान बंद रही कि मरियम को आने दें। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। भगोड़े नवाज शरीफ साहब। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपोजिशन के जलसे को नाकाम करार दे दिया। बोले, मैंने जो चैलेंज किया था उस पर राना सनाउल्लाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑपोजिशन ने कल के जलसे में इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की। उनका मजीद कहना था बिलावल भुट्टो से घटिया हरकत की तवक्को नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि इनकी सियासी साख्त कैसी है। मैंने इनको दिया था, उससे तो चाहिए कि परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर इस्तीफा दे दें। इन्होंने तो जिक्र किया हमारे दिसंबर का, इनका तो लगता है कि दिसंबर कल रात से ही शुरू हो। तो बात यह है कि जिस तरह से कल ऑपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की, खास तौर पे बिलावल भुट्टो ने, खास तौर पे ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की। बिलावल भुट्टो, आपसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन आपने ये साबित किया कि आप खवातीन के बारे में बात करके जितनी आप ये एक इतनी घटिया हरकत करेंगे, इससे हमें इसकी तवक्को नहीं थी कि किस तरह से आपने खवातीन को इन्वॉल्व किया जिनका कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी अपनी वालदा भी बहुत वो सियासत करती थी। आपको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुनासिब है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन के जलसे को बिगड़े हुए बच्चों का शो करार दिया। बोले, कल बिगड़े अमीरजादे इदारों को ललकार रहे थे। जमातों ने करोड़ों रुपए खर्च करके 15,000 बंदे इकट्ठे किए। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को रात 2 बजे खाली कुर्सियों से खिताब का मौका दिया। नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि वो फौज से कैसे बदला लें। कल हमने देखा कि अमीरजादों के नाखलफ बच्चे किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे और किस तरीके से ये बिगड़े हुए अमीरजादे अवाम को और फौज को ललकार रहे थे। अगर 11 पार्टियां करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर 15 से 18,000 लोग ही जमा कर सकें, जबकि गुजरांवाला की अपनी आबादी जो है वो मिलियंस में है और उस आबादी में से सिर्फ 15 से 18,000 लोग अपोजिशन इकट्ठे कर पाई। उसके बाद तंजीम का हाल ये था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको रात 2 बजे PMLN और पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया कि वो भी खिताब करें। नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फौज से कि उन्हें ठुकराया क्यों है। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं की भी PTM पर तनकीद। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, मौलाना ने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनकर क्या किया, चाहे कुछ भी हो एहतसाब होकर रहेगा। खुर्रमशीर जमान बोले, एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले आज तारीफों पर उतर आए। नवाज शरीफ को माफ करने वाले जरदारी को अल्लाह माफ नहीं करेगा। मौलवी के एक ही मियार है। हमारे यहाँ जब मौलवी बोले तो वो सुन्नत नबवी पे बोले, और सुन्नत नबवी ये है कि सदाकत और अमानत 2 अहम तरीन शर्तें हैं। तभी ऐलान नबूवत से पहले जब उन्हीं ने पूछा था कि मैं कहूँ फौज है, तो सारे मक्के ने कहा कि हमने आपको हमेशा सादिक और अमीन पाया। आप कहते हैं तो है। मौलाना अपना किरदार बुलंद करो। आसिफ जरदारी कहता था कि अगर नवाज शरीफ को हमने माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करे। जरदारी, अल्लाह तो तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें पाकिस्तान की कौम भी माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जरदारी तुम्हारे से सुबह सिंध भी जाएगा। जिस तरीके से तुमसे पंजाब गया,
तुम्हारे बाकी साथियों के साथ केपी गया, बलूचिस्तान गया, इसी तरीके से सिंध भी जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सारे सूबों पे राज करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसीज बेहतरी की तरफ जाएंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरह बेहतर होगी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इसी तरीके से बेहतर होगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज टाइगर फोर्स से खिताब करेंगे। वजीर आजम नौजवानों के लिए खसूसी पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। टाइगर फोर्स को महंगाई के खिलाफ अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वजीर आजम नौजवानों को जखीरांदोजी के निशानदेही से मुतल्लिक लाहेअमल देंगे। कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़िम इमरान खान के खिताब के लिए कन्वेंशन सेंटर के अंदर और बाहर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। पाकिस्तान भर से टाइगर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। पोर्टल के जरिए टाइगर फोर्स निशानदही करेगी और हुकूमत कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म अपने खिताब में टाइगर फोर्स को मुस्तकबिल का लाहेअमल देंगे, जबकि महंगाई और जखीरा अंदोजी के बारे में बातचीत की जाएगी। मुआविन खसूसी उस्मान डार कहते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए डिजिटल गवर्नेंस का आगाज होने जा रहा है। कौमी हीरोज को जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी उस पर वो पूरा उतरेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। बोले, हमारे दौर में वजीर आजम की तस्वीर छपती थी तो सोमोटो नोटिस होता था। मेरी दरख्वास्त है अब भी वज़ीर आज़म के खिलाफ अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। उनका मजीद कहना था, कल सबसे अवाम का मुकदमा लड़ा। हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करने के बजाय उल्टे वार कर रही है। सब ने देखा कि गुजरावाला में अवाम का समंदर था, कल भी कराची में अवाम का समंदर होगा। जायज के हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, आवाम को इस तरह के ताने कस रहे हैं। उस आवाम को जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, बेरोजगारी के भंवर में फंसी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम की जमातों ने फैसला कर लिया है कि तर्जुमानी होगी पाकिस्तान की आवाम की होगी। 22 करोड़ आवाम का मुकदमा इंशाल्लाह सड़कों पर लड़ा जाएगा। पहले ये कहते रहे आवाम नहीं आएगी, आवाम नहीं आएगी। आपने देखा आवाम का एक समंदर था जिसने उनके कंटेनर्स को उठा के फेंक दिया। कल आप देखेंगे कि जहां तक निगाह जाएगी वहां तक आपको बंदा होगा और नारा एक ही होगा कि गो नियाजी गो, गो इमरान गो। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गुजरावाला में मुनक्किद किए जाने वाले ऑपोजिशन जलसे के बाद जिना स्टेडियम गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। मजीद जानेंगे साजिद अवान से। जी साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पीडीएम है कल गुजरावाला के अंदर अपना भरपूर पावर शो करके अपना काम तो कर चुकी है और दूसरे पावर शो की तैयारियों में लग गई है। अगर कोई अभी तक नींद के मजे ले रहा है तो वो है गुजरावाला की जिले इंतजामिया। कल की जलसा गाह जिना स्टेडियम के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पूरा जिना स्टेडियम जो है, इसका ग्राउंड, इसके साथ जो है बनी हुई सीढ़ियां, हर जगह कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। जिना स्टेडियम जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डंपिंग यार्ड का मंजर पेश कर रहा है। अगर जिले इंतजामिया की बात की जाए तो कल जलसा से पहले गुजरावाला भर के अंदर कंटेनर्स लगाने और खारदार तारें लगाने के लिए जिले इंतजामिया बहुत ज्यादा एक्टिव और पेश नजर आ रही थी। मगर जिले इंतजामिया के अमली तौर पर जो करने वाले काम है उसमें जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गाफिल नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे गुजरावाला जिले इंतजामिया के लिए बुजदार सरकार की खुशामद के जो मामलात हैं उनको ही करना अव्वलीन तरजीह है और जो उनके अमली तौर पर करने वाले काम हैं वो अब उनके लिए किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं रखते। बहुत शुक्रिया साजिद अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में पीडीएम जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। जिना ग्राउंड में स्टेज सज चुका है, कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ सोलंकी, बताइएगा जलसे के हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची? आज देखें, कराची में इतवार के रोज पीडीएमए के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त मैं जना ग्राउंड में मौजूद हूं और मेरे बैक में कैमरामैन सिराज दिखा सकते हैं कि कुर्सियों का भी इंतजाम किया गया है, जबकि इस जलसे में 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं, जिनमें से एक 60 स्क्वायर और 60 से लेकर 80 स्क्वायर फीट का जो है स्टेज बनाया गया। सबसे बड़ा स्टेज जहां पर
तमाम कायदीन जो है वो होंगे, जबकि इनके पीछे जो है खारदार तारों का भी इंतजाम किया गया, खारदार तारें भी लगाई गई हैं। और कराची का ये जलसा गुजरावाला जलसे के बाद सबसे बड़ा जलसा कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें तमाम जो 11 पार्टियां हैं इस PDMA में, तो वो उनके तमाम कायदीन इसमें शामिल होंगे। कि इस ग्राउंड को राह हमवार करने के लिए भी जो काम किया जा रहा है, और इसके जो 2 से 3 गेट्स होंगे जहां से कारकुनान की जो है आमद होगी, जबकि जो VIP गेट है वो न्यू MA जिन्ना रोड के साथ VIP गेट रखा गया है, जहां से जो है अहम इस जलसे में कायदीन शरीक होंगे और उनकी गाड़ियां आएंगी। उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी है। खवातीन अपने मुतालबात की मंजूरी की मुंतजिर हैं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से जो इस वक्त डी चौक पर मौजूद हैं। कामरान, बताएगा धरने के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का डी चौक है और लेडी हेल्थ वर्कर्स खवातीन का ये धरना जो है उसका चौथा रोज है। चौथे रोज से जो है वो ये धरना यहाँ इस्लामाबाद में जारी है। चौथे रोज के बावजूद यहाँ पे अगर मुज़ाकरात इनके साथ नहीं कामयाब होते या इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहती है, इंतजामिया की जानब से किसी तरह का भी जो है वो अगला लाए अमल जो है वो तय नहीं किया जाता, तो इन खवातीन के लिए अब मुश्किलात का सामना भी जो है वो इनको करना पड़ रहा है। रात को इस्लामाबाद में जो है वो शदीद सर्दी भी होती है और दिन को जो है वो मौसम काफी गर्म भी होता है। खवातीन के साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दूर दराज से ये खवातीन यहाँ पे पहुंची हुई हैं। यहाँ पे एक लेडी हेल्थ वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, और चौथा रोज है, हुकूमत की जानिब से अभी तक कुछ नहीं किया गया, कोई किसी तरह के मुज़ाकरात या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? आपके सामने बात है कि दिन की धूप और रात की ठंड है और निहत्ते औरतें हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके सिर पे छत नहीं है। जो औरतें अगर मगरिब के बाद किसी टाइम भी अपनी औरत अपने घर ना पहुंचे, उसकी 4 दीवारी उसकी बहुत बड़ी इज्जत होती है। और यहाँ पे सर्दी में और गर्मी में, दिन को गर्मी होती है, शाम को सर्दी हो जाती है, यहाँ पे ही है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब किए जाए। हम कोई बड़ा मुतालबा नहीं करें, हमारी वही से सिविल स्ट्रक्चर है तो बाकी महकमों का बनाया गया है तो हमारा भी बनाया जाए। ये जी बिल्कुल वही वाली बातें हैं, वही मुतालबात हैं और उन मुतालबात को लेके ये खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, हुकाम के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ताम हुकूमत की जानब से किसी भी तरह के जो है वो मुस्बत इशारे जो है वो यहाँ पे इनको नजर नहीं आ रहे कि ये धरना जो है वो खत्म होगा। ताम अभी तक जो है वो ये खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चों के साथ बड़ी तादाद में जो है डी चौक इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर का इंतहाई मसरूफ और अहम मुल्तान रोड अरसा दराज से ट्रैफिक सिग्नल से महरूम है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील नकवी, लाहौर का इंतहाई अहम मुल्तान रोड ट्रैफिक सिग्नल से महरूम है। जी बिल्कुल, कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो मौजूद माशरे की निशानी होते हैं, लेकिन तब्दीली सरकार को आए हुए 2 साल गुजर चुके हैं। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की वजह से जो मुल्तान रोड टूटा था उसके बाद ऑरेंज ट्रेन भी अब चलने वाली दोबारा हो गई है और रोड भी जो मुकम्मल तौर पर जो तैयार हो गया, लेकिन ताहाल सिग्नल इस रोड पे हम लोगों को नजर नहीं आ रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मुल्तान रोड के इंतहाई अहम तरीन चौक समनाबाद चौक में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बेहंगम ट्रैफिक चल रही है। ना कोई हमें फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन नजर आ रहा है और ना ही कोई दूर दराज तक जो है हमें यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल से नजर आते हैं जो मुसलसल ट्रैफिक ब्लॉक की तो वजह बनते हैं, साथ ही साथ किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह ये बन सकते हैं। लाहौर का मुल्तान रोड जो है वो लाहौर लोग जो शहर के अंदर और बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैवी ट्रैफिक इस रोड को इस्तेमाल करती है। खासतौर पे चिंची रिक्शे भी हम लोग इस रोड पर नजर आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नजर आते हैं, बड़े बड़े ट्रक जो है वो भी हम लोग इस रोड पर नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे अरसा दराज गुजरने के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाए गए जो मुसलसल जो है किसी भी बड़े हादसे का वजह बन सकते हैं। खास तौर पर ऑफिस के औकात में, स्कूल के और कॉलेज की छुट्टी के औकात में इस रोड पर जो है इंतहाई ट्रैफिक ब्लॉकिंग हम लोगों को देखने में आती है, जिसकी वजह से लोग जो चंद मिनटों का सफर जो है वो घंटे घंटे लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं। और शहरियों को यही मुसलसल मुतालबा सामने आ रहा है। खुदारा अब तो ऑरेंज ट्रेन भी 25 अक्टूबर को उस्मान बुज़दार साहब के मुताबिक चलने वाली है, तो खुदारा इस रोड पर ट्रैफिक सिग्नल भी दोबारा लगा दिए जाए ताकि लोगों को जो मुश्किलात है, जो हर वक्त जो ट्रैफिक में यहाँ फंसे रहते हैं या किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह ये ट्रैफिक सिग्नल का ना होना बन सकता है, लोग उससे बच सकें। सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन के वफ्द की कमिश्नर कराची डॉक्टर सुहेल राजपूत से मुलाकात हुई। वफ्द की जानिब से कमिश्नर कराची को केबल ऑपरेटर्स के मसाइल से आगाह किया गया।
कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन के एक नुमाइंदा वफ्द ने कमिश्नर कराची डॉक्टर सुहेल राजपूत से इनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर वफ्द के अरकान ने कमिश्नर कराची को केबल की सनत से वाबस्ता अफराद के मसाइल से आगाह किया और मुतालबा किया कि एयर फाइबर ऑप्टिक केबल को अंडरग्राउंड करने और कराची की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मसावी बुनियादों पर कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन को भी ऑन बोर्ड रखा जाए। कमिश्नर कराची ने यकीन दिलाया कि केबल ऑपरेटर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन को कराची ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम और एरियल फाइबर ऑप्टिक केबल को अंडरग्राउंड करने के अवामिल में साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। इस मौके पर कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन शेख मोहम्मद हुसैन, सीनियर वाइस चेयरमैन अमीर अली चांडियो, सदर इरफान खेतानी, नायब सदर नादिर शाहानी, जनरल सेक्रेटरी नबील खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जावेद हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गुलफाम हैदर हाशमी और फाइनेंस सेक्रेटरी शाहवेज खान भी मौजूद थे। PFUJ के सदर GM जमाली ने इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स की मावनत की। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन एहतिया की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी भी सड़कों पर जमा, जिसके बायस इलाका मकीन काफी परेशान दिखाई देते हैं। सड़कों की सूरत हाल जान लेते हैं शहजादा मोइन से। जी मोइन, बताइएगा कराची औरंगी टाउन की सड़कों की सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 गुलशन जिया पे। तो यहाँ पर जो है 3 से 4 माह हो चुके हैं और अब तक जो है यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी रोडों पे मौजूद है, सड़कें टूटी फूटी है और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, कितना अरसा हो गया है यहाँ पर जो ये सीवरेज का गंदा पानी जो है आपके रोडों पे बहता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सड़कें भी टूटी फूटी हैं, तो क्या कहेंगे? भाईजान ये तकरीबन 3 से 4 माह हो गए, ये पीछे ईसाई मोहल्ले से पानी आ रहा है ये, और लेडीज से आने जाने बड़ी परेशानी होती है। रक्शे वाले जो है बड़े परेशान होते हैं, सवारी लेकर नहीं आते हैं। बड़ा ही मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सही करवाएं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत से अपील की कि जल्द से जल्द जो है इस वाले जो रोडों को सही किया जाए। हमारे साथ एक और शख्स भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे, कितने अर्से से? भाईजान ये लॉकडाउन से ही तकरीबन है और ये हर किसी के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। लेडीज है, औरतें हैं, बच्चे हैं, नमाजी, हर आने जाने वालों के लिए। यहाँ कोई बाइक वाले अपनी फैमिली लेके गिर जाते हैं, तो ये हर किसी के लिए परेशानी है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पर जो गंदा पानी मौजूद है सीवरेज का और जो रोड टूटे फूटे हैं, जिसके बाइस जो है यहाँ पर जो फैमिलीज जो अपने साथ जा रही होती है बाइकों पे, वो भी गिरते हुए नजर आई। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द जो है इन सीवरेज के जो पानी, गंदा पानी और रोड है जो जल्द से जल्द सही कराया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। तब्दीली सरकार को आए 2 साल से जायद हो गए, लेकिन इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस के अकब में वाक़ई रोड की हालत ज़ार न बदल सकी। टूट फूट का शिकार सड़क बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करती है। मजीद जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद। आज बिल्कुल हुकूमती दावों के बरक्स अगर देखा जाए तब्दीली सरकार को आए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके वाने सदर के बिल्कुल बरक्स अगर उसके एन अकब में देखा जाए तो यहाँ पर रोड जो है बिल्कुल पसमानदा इलाके से कम नज़र नहीं आती। जगह जगह यहाँ पर खड्डे पड़े हैं और साथ साथ बारिश अगर हो जाए तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं कि और ये कब से ये रोड यहाँ पर जो है खड्डे मौजूद हैं, और आपने क्या किसी इंतजामी से बात करने की कोशिश भी की है? जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कई मरतबा बात की है, तकरीबन 4-5 साल से ये रोड टूटी हुई है और काफ़ी लोगों का हमने साथ हमारा सदर है और यहाँ पर हमने लोगों को बताया भी है ये बरमाम की रोड है और ये रोड बिल्कुल टूटी फूटी हुई है और यहाँ पर पानी खड़ा होता है, गाड़ियों को एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और बच्चों के लिए मुश्किलात है। हर किस्म की यहाँ पर सहूलत की कोई किसी किस्म की मैसर नहीं है, अब तक इसका कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि आपने जाना कि इसी तरह ये ज़्यादा दूर रोड नहीं है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और शरा जमहूरियत के साथ ये 4th एवेन्यू की रोड है। अगर मेरा कैमरामैन मेरे में दिखा भी सके तो ये बिल्कुल जगह जगह खड्डे मौजूद हैं और किसी पसमानदा इलाके का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये पसमानदा इलाका नहीं है। ये बिल्कुल जो है पार्लियामेंट और ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्कुल अकब में ये रोड वाक़ है। साथ ही मुख्तलिफ जो है सफारतखाने भी वाक़ हैं, लेकिन इसकी यहाँ पर जब रूट लगता है तो यहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड से गुजर जाती हैं, उनको तो कुछ परवाह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बाकी जो शहरी यहाँ के मुकीम है, जब वो यहाँ पे गुजरते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि हम कई मरतबा जो है इंतजामिया से भी उनको बावर करवाने की कोशिश कर चुके हैं, उनको दरख्वास्तें लिखी गई हैं और मुख्तलिफ अदारों के पास भी गए हैं, लेकिन वो हमें CDA वाले एक दूसरे पे CDA वाले जो हैं वो MCI पे डाल देते हैं और दीगर जो इंतजामिया वो MNA का पास जाने का कह देती है, लेकिन हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर हम जो है पानी, बारिश का पानी भी जो है हमारे लिए मसाइल का जो है वो शुक्रिया सजाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उमर गुल के 20 साल प्रोफेशनल
करियर का सूरज गरूब हुआ, जबकि कौमी T20 टूर्नामेंट के बलूचिस्तान के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की वजह से सदरन पंजाब के खिलाफ मुकाबला उनका आखिरी मैच साबित हुआ। मैदान में साथी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने उमर गुल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।